Assalamu alaikum students. How are you? Today we are going to continue our lesson, that's pollution, chapter number 8 of your geography book. And today's topic is land pollution. And land pollution is the most common type of pollution which you every day witness when you walk along the roadside or you travel to your school or somewhere else. Students, this type of pollution occurs when waste or rubbish is not disposed of properly. Now, what happens every day? Thousands of kilograms of rubbish are produced by households, that means in our homes, and as well as it is produced by the industries. Now, there are many places in the world where this rubbish is collected properly and then it is disposed of properly. But there are so many places here on the earth where there is no such system of collection and disposal of this rubbish. So, where do we see that rubbish? We see that rubbish such as plastic, paper, metal, food refuse, just lying around, thrown into drains, rivers, or simply dumped in empty spaces. अब इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि आपको वो सब चीज़ें पहले they release pungent smell, then they start decomposing if they are decomposable. मगर अगर वो decompose नहीं हो सकते then they are left there for a long time until and unless somebody comes and collects or pick it up. तब तक क्या होता है? तब तक उसमें से केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं, वो सब के सब आपके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं एंड दे पल्यूट आवर लैंड. या फिर वो आपके ड्रेन्स को बंद कर देते हैं और अर्बन फ्लडिंग क्रिएट करते हैं जब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है. और या फिर वो प्लास्टिक बैग्स जो हैं या और इस तरह का रबिश वो पौधों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, ट्रीज़ के ऊपर आकर उनको कवर कर लेता है या उनकी रूट्स को कवर कर लेता है व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू द सॉइल. और फिर उससे उनकी ऑक्सीजन या वाटर इनटेक ख़त्म हो जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ भी फिर दैट कम्स इन डेंजर. So this is land pollution. What is it? When garbage is disposed of indiscriminately in open dumps, drains and along roadside, it causes land pollution. Now here is a diagram. It's actually a pie chart that shows different types of solid waste. And in this diagram, the most is paper and paper board waste. It is 38%. The second which is highest, that is yard waste. Now what is yard waste? Yard waste, definitely it is that which comes from your gardens, yards, like clippings of plants, trees, dry leaves, branches, dry grass, etc. etc. So that is actually biodegradable and that is called, मतलब आप इसको ये सिंपलीफाई हो सकता है खुद ही से, ज़मीन के अंदर डंप कर दें या तो इसको ज़मीन में मिक्स कर दें और ऊपर से इसको फिर कवर कर दें तो ये खुद ब खुद आपको ये लैंड में मिक्स हो सकता है. that it is biodegradable. It can simplify naturally. मगर जो सबसे डेंजरस है फॉर अर्थ वो है प्लास्टिक वेस्ट. डेंजरस इसलिए कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट
to get rid of this plastic, because it remains on the earth without breaking down for a long time. और उसके बाद जो डेंजरस चीज़ है दैट इज़ माइनिंग साइट्स के ऊपर जो भी केमिकल वेस्ट मटेरियल बाहर फेंका जाता है, दैट आफ्टर दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, दोज केमिकल्स आर वेरी डेंजरस फॉर द अर्थ. उनको भी बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है ताकि उनका भी जो इफ़ेक्ट है, द डेंजरस इफ़ेक्ट, उसको आप ख़त्म कर सको. तो इन दिस पाई चार्ट यू सी major types of the waste which are produced on the earth. So what are the other than papers and paperboard and yard waste? They are food waste, textiles, glass, plastics, rubber and leather, wood, metals, and then the others as well. So here is a picture of page 80 from your book, and it shows the farming activities which are also causing land pollution. So we'll discuss these causes in detail. So causes of land pollution. There are some degenerative actions which include many human actions like deforestation, that means cutting of forests, then overuse of pesticides and chemical fertilizers. This use of pesticide as well as the chemical fertilizers is necessary on farms. When you'll read page 80 from your book, you will understand that on the agricultural farms, farmers have to use these chemicals. They use fertilizers to improve the growth of crops and the harvest. They use pesticides because they have to kill the insects, the pests, right, which are dangerous for the crop because they may eat the crops or spread the plant diseases. वो भी ज़रूरी हो गया. Then they also use herbicides. अब herbicides क्या होती हैं? Herbicides are those chemicals which are used to get rid of weeds. जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं बीच में, वो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, वो खुद कोई नुकसान इस तरह से नहीं देते कि दे आर नॉट जस्ट लाइक पैरासाइट्स, मगर वो क्या करते हैं, दे यूज़ द फर्टिलाइज़र फ्रॉम द अर्थ. और इस तरह जो आपका एक्चुअल क्रॉप है दैट गेट्स लेस न्यूट्रिएंट फॉर इट्स ग्रोथ. सो these actually compete, these weeds compete with the crops for nutrients in the soil. That is why they are dangerous. So herbicides are used to kill these weeds. अब इसके अलावा herbicides भी यूज़ कर लिया फार्मर्स ने, पेस्टिसाइड भी वो यूज़ कर रहे हैं. अब इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स. नाउ दे आर नेसेसरी बिकॉज न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्रॉप्स के लिए ज़रूरी हैं. If naturally the soil doesn't has much nutrients in it, farmer has to put some artificial fertilizers to produce a better harvest. But they also pollute the land when they are washed into the soil. And many of these chemicals do not break down into harmless substances easily. So they are dangerous. फिर आप देखें, desertification also is a cause of land pollution. What is desertification? It's a process by which a piece of land becomes desert. Right? अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से desertification होती है. That we'll discuss later. फिर
mining activities, inefficient and inadequate waste treatment, landfill, litter, etc. ये सब degenerative actions हैं. लेकिन many of these are unavoidable. फर्टिलाइज़र्स ज़रूर इस्तेमाल होंगी, पेस्टिसाइड्स ज़रूर यूज़ होंगे, हर्बिसाइड्स ज़रूर यूज़ होंगे. तो फिर हम क्या करें? हाँ, एक चीज़ और that I want to explain is irrigation on farms often results in salinization of the soil. That's also a type of land pollution because it destroys your land structure. डैमेज करती है उसको, लैंड स्ट्रक्चर को. सेलिनाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द इंक्रीज इन द सॉल्ट कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल, राइट. जब इरिगेशन की वजह से, और इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा पानी अगर आप देते हैं, उस वक्त ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन द वाटर. उस पानी में जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और नीचे वाटर लेवल राइज़ करता है, तो वो सारे सॉल्ट्स पानी में डिज़ोल्व होके दे कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वाइट वाइट सी लेयर नज़र आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेलिनाइजेशन. ये आपके सॉइल को डिस्ट्रॉय करती है. फिर हम दोबारा से क्रॉप्स उसके ऊपर नहीं उस तरह उगा सकते जैसे हम बग़ैर सेलिनाइजेशन और हेल्दी जो लैंड होती है उसके ऊपर उगाते हैं. तो इसलिए ये अनसूटेबल है फॉर फार्मिंग. दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज योर लैंड एज आई टोल्ड यू बिफोर. तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस देयर सेवेरिटी बाय टेकिंग सर्टन एक्शंस. अब वो एक्शंस जो हैं वो क्या हैं? वो हम खुद भी कर सकते हैं ऑन आर इंडिविजुअल लेवल, और वो गवर्नमेंट भी करती है. अच्छा, पहले हम दूसरे कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं. The other causes which actually cause land pollution, they may include urbanization. What is urbanization? That means change of land into cities. फिर improper waste disposal, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम कहीं पर भी कूड़ा फेंक देंगे, डंप कर देते हैं घरों के पास जो खाली जगह हैं वहाँ पर फेंकना शुरू कर देते हैं. If there are no people to collect properly from that rubbish from our homes, जब वो खुली जगह पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है केमिकल्स रिलीज़ करेंगे वो वेस्ट, एंड दैट विल कॉज लैंड पोल्यूशन. फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, न्यूक्लियर रिसर्च है, केमिकल्स रिलीज्ड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, कोल पावर प्लांट्स, मेटल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा. ये सब के सब जो हैं जितना भी वेस्ट क्रिएट करेंगे दैट विल बी थ्रोन ऑन द लैंड इफ़ दे विल कॉज लैंड पोल्यूशन. नाउ do you think we can prevent this land from getting polluted, or how can we stop this or decrease this land pollution? So there are certain ways by which we can do it, but for that we have to first realize that how dangerous is the land pollution and what will be the consequences of this land pollution. जब हमें ये समझ आ जाएगी तो फिर हम उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे. अब वो जो कोशिश है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी की जाती है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन इंडिविजुअली ऑन आवर पर्सनल लेवल्स. अब पहली चीज़ ये है कि हम पहले ये रियलाइज़ करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाई इज़ दिस लैंड पोल्यूशन डेंजरस? जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? देन विल adopt some methods or will take some steps then to stop this. वो करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आप करेंगे क्या? You will adopt 3R principle. What is 3R principle? That is
रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। वेस्ट कम प्रोड्यूस करें, रीयूज़ करना सीखें चीज़ों को, और फिर उन्हें रिसाइकिल भी करना सीखें। सेकंड लेवल पे हम क्या करेंगे, जब हम अपने घर से वेस्ट को बाहर किसी कलेक्टर को देंगे तो हम पहले ही उसे सेपरेट कर लें। आई मीन पेपर्स को अलग कर लें, मेटल को अलग कर लें, ग्लास को अलग कर लें, और बाकी वेस्ट जो आपका दूसरा वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स हो गए या इस तरह खाना हो गया, उसको अलग कर दें। ये जो है ये हम खुद कर सकते हैं, और अभी करते भी हैं हम। शायद कभी आपने गौर नहीं किया, लेकिन कभी आप जो बाहर रद्दी वाला आता है या कबाड़ी वाला आता है, उसको जब आप सामान दे रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली यू आर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली। न्यूज़पेपर दे रहे हैं, अगर पुरानी नोटबुक्स दे रहे हैं, वो उस बंदे को जिसको आप दे रहे हो, तो आप एक्चुअली यू आर टेकिंग पार्ट इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। वो वहाँ से ले जाकर उसको दे देगा स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर वो रिसाइकिल हो जाएगा, राइट। तो ये हम कर भी रहे हैं, और हमें इसको अब प्रॉपरली करना भी चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इनकरेज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर कम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इस्तेमाल हों और कम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हों, और ताकि वो हमारे लिए हेल्दी हो, एंड इट विल हैव लेस chemicals in it. So apart from all these steps, we should even decrease the use of insecticides, floor cleaners, disinfectants at our homes too. नेचुरल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम वो नेचुरल तरीके करेंगे तो उससे क्या होगा कि we will not rely on these artificial chemicals. They will also help in reduction of land pollution. अब आ जाएं जी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे किया जाए। देखिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द लैंड पोल्यूशन। अब इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं, राइट। पहला तरीका क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, सेपरेशन ऑफ द वेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैसे अपने घर से ही चीज़ों को सेपरेट करना शुरू कर दें। बिन्स 3 रख लें एक ही जगह, इन वन यू थ्रो पेपर्स, या एक जगह एक बैग बड़ा सा बना लें, उसके अंदर या कोई बॉक्स बना लें, उसके अंदर पेपर, पुराने न्यूज़पेपर्स, पुराने मैगज़ीन्स या कोई ओल्ड नोटबुक्स जो आपके यूज़ में नहीं आ रही, आप कर चुके हो यूज़ ऑलरेडी, वो सब चीज़ें वहाँ डालते जाएं। मेटल्स को अलग जगह पे डंप करते जाएं, और ग्लास को अलग फेंक दें, कपड़ों को अलग फेंक दें। और अगर आपको स्ट्रीट में आवाज़ आती है किसी ऐसे हॉकर की जो ये चीज़ें लेना चाहता है, तो आप उसको दे दो। और जो डेली कूड़ा उठाने के लिए लोग आपके घर पे आ रहे हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनको आप अपना जो बाकी का वेस्ट है वो दे दो। तो इस तरह सॉलिड वेस्ट एंड और ड्राई वेस्ट या फिर वेट वेस्ट अलग अलग हो जाएंगे। नाउ हाउ टू डिस्पोज ऑफ दीज वेस्ट। घर से तो चले गए, अब घर से जब चले गए तो जो आपने कबाड़ी वाले को दिया वो तो किसी इंडस्ट्री में जाके दे देगा टू बी रिसाइकल्ड। और जो वेट वेस्ट था हमारे घर से, फूड स्टफ़ था, कोई पुराना खाना, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी फर्दर दे शुड बी डम्प्ड इन पिट्स। गढ़ों में उनको दबाया जाता है, दे विल बी कवर्ड, फिर उन्हें ट्रीट किया जाता है केमिकल्स के साथ ताकि वो हार्मलेस हो जाएं या लेस हार्मफुल हो जाएं, और उनका टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो भी लोअर हो जाए। देन what we can do, we should buy biodegradable products. What are these biodegradable products? These are actually made of organic substances which can easily be decomposed, or they can be easily broken into simpler substances.
this is, a big step towards decreasing the land pollution. When we'll rely on organic substances, definitely people will also not use such chemicals on their farms, and even they will not try to produce those things which people are not buying. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्लास्टिक की चीज़ें नहीं ख़रीदते, कम ख़रीदना शुरू कर दें, तो बनाएंगे क्यों लोग? इसके बजाय फिर वो दूसरे तरह की चीज़ों पे रिलाई करेंगे जो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं. तो वी शुड, देर इज़ अ नीड दैट वी ऑल्सो चेंज ourselves, right? हमें अपने अंदर एक चेंज लाना होगा ताकि हम खुद रिलाई ना करें ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच क्रिएट लैंड पोल्यूशन और विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ईजिली इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. लाइक स्टायरोफॉर्म की चीज़ों की जगह आप मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. थर्मोपोर शीट से बनी हुई चीज़ों की जगह पेपर की चीज़ भी यूज़ हो सकती है, बिकॉज पेपर टेक्स लेस टाइम टू बी डिकम्पोज्ड एंड इट कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड एज वेल. फिर इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है जो फार्मर्स केमिकल्स इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे. सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन द डिक्रीज ऑफ लैंड पोल्यूशन. नाउ द बेस्ट मेथड, द ईजीएस्ट वे, जो हमें हमारे रिलीजन ने भी बहुत एम्फसाइज़ किया है, और वो क्या है? प्लांट अ ट्री. बहुत सारे फ़ायदे हैं प्लांटेशन के, मगर अगर आप इस ज़मीन के बारे में सोचेंगे तो इट विल गेट मोर हैप्पियर when you will plant a tree. Why? Because the roots of that plant which you are going to plant will hold the top fertile layer of it, right? Its leaves will release more oxygen into the air and they will use carbon dioxide to produce their food. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो गई, हवा भी क्लीन हो गई. उससे आपकी ज़मीन खुद ब खुद फर्टाइल होना शुरू हो जाएगी और इस तरह आप लैंड पोल्यूशन को डिक्रीज़ भी कर सकेंगे. क्योंकि ट्रीज़ जो हैं दे ऑल्सो हेल्प इन नेचुरली fertilizing the soil. So by growing trees, soil will become fertile and agriculture will be boosted and land pollution will decrease. So there are so many other things which we can do. First is the thing that we should also help the government. Whatever the steps they take, we should participate in that, right? अगर वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपकी हेल्प चाहते हैं तो आपको हेल्प करनी चाहिए. हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है ये टॉपिक, सो दैट यू लर्न व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी रिड्यूस इट. सो वंस यू नो थिंग्स, you start giving the same awareness to your friends, to your family members and to your community as well. फिर इसी तरह हम जब लोगों को बताएंगे तो लोग भी वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो आप करते हैं. ऑर्गेनिक फूड, राइट, पेपर से बनी चीज़ें. यू मस्ट से नो टू प्लास्टिक. जब आप प्लास्टिक की चीज़ नहीं खरीदेंगे और किसी और को कहेंगे तो वो भी नहीं खरीदेगा. तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी स्मॉल स्टेप्स बट दे डेफिनेटली हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ लैंड पोल्यूशन. So this was the end of our topic. I hope you have understood it well and hope to see you again. Thank you. Allah Hafiz.